after few months left in month of November, the election is going on of Mizoram. So now we are preparing the election, how to win, how to form the government. So we have to write some agenda to development our community. How to win the election. Without development, the people want those who gives us vote. Only they think what I will get from the government, what the party will give us to development our community, our village, our area. Only the common people, only that much they want. I will give a vote. After vote, what they will give, what the party will give, what the government will give. Only they, the common people, that much they want. So, in Modi government, Modi has launched above 100 schemes to develop the people of our country. And maybe some state, just like you will go UP, there is a double engine government is there. That's why central and state maximum benefit goes to them. And many states I have visited. I have seen near Assam also what is going on. And wherever I went there, I came to know in Gujarat also where the development has gone. In suppose like here, this Mizoram government, they are not implement the central schemes. That's why we are deprived. The people are not getting any central schemes. Suppose I am a minority ministry. There is many things to do through our ministry. Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram, PMGJVK. We can make a school, college, hostels, women hostel, boys hostels, ITS center, vocational training centers, everything we can do. But I don't know why the government, either they don't know about these schemes, either they are not aware with these schemes. It is their responsibility to convince the people, to aware the people. But last time also, when I came here, I sit with all the department officers are there. I have already said, why you are not saying sending the proposal to us? We are ready to do. Another state, they are taking thousand fund from the central schemes, from the minority to develop the school, hostel, even stadium also, sports complex. Near Shillong in Meghalaya. Last time we have approved 2,000 hospitals, 2,000 beds hospitals we are making over there. One is stadium, 127 crores. Outdoor, indoor stadium we are making. 200 beds, hospitals,
150 crores we have already given. The first installment. But why the Mizoram government, they are not sending any proposal? Many times our presidents, he always speaks, our spokesperson. Today also, last time when I came, whenever I came, Mara district council was there. At that time also I came here. She told me, what is there? How many schemes are there? I told her also. I explained all the schemes. Not only this, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, हम लोग वी आर द चर्च, यहाँ पर हम लोग चर्च लीडर भी है, फादर बिशप मैन, सब हम लोग समाज को सेवा करने के, तो every Sunday we listen from the fathers and sisters and brothers and pick up the poor people, help the poor people. सब समय हम लोग ये बोलते हैं. Every Sunday we listen when our father be reading the Bible. When the father reading the Bible, after reading the Bible, he gives us a speech about Bible, what the Jesus has told. But without opening the book, in which chapter John has, what he has written, what Matthew has written, what Paul has written, without opening the book, the father can know, brother can know. We also sometimes we can. But and every what we listen, pick up the poor people, help the poor people. But without opening the book, you came to know what Bible is written. But to development our community, those who are servicemen, those who are rich men, they can develop their children. But those who are living in remote place, in village, they are not educated. Only they are working 8 hours, whatever they are getting, in village, in field, whatever they are working, they are getting, only they run the family, education, everything. But to educate another business I want to do, there is, Modi has launched 100 of schemes to development the poor community, those who are poor. Why I am saying this? Without opening the book, we came to know everything. But what we think, father, brother, and all here we are sitting, we are the leader of our community. And community, they depend on us. They will bring us for development. We know about this. But 100 of schemes are there. Who knows? If I will know about this and I explain, we are giving 1 hour, half an hour, 1 hour, we giving a speech about the Bible. Give some time. You have to know about, if you want to develop it, you are saying that pick up the poor people, help the poor. How can you will pick up the poor? By helping the government schemes. Who knows? Only praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Before also I am a preacher. Hey, Johnny, I can come here. Pastor, they come here. Bishop, they cut the book and हर समय बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबका विकास, सबका साथ. We have to unite it. विकास, development,
प्रयास, प्रयास मीन्स व्हाट? प्रयास का मतलब है कि अगर हम प्रयास नहीं करेंगे हमारे कम्युनिटी के लिए, मोदी जी लॉन्च किया है 100 स्कीम्स, वो स्कीम अब तक लागू नहीं हुआ है। और हमारा लोग हमारे ऊपर डिपेंड बैठा हुआ है कि ये स्कीम कब दे। सपोज बात का बात हम बकरी पालन करना पड़ता, हम सुअर पालन करना चाहते हैं, हम गाय पालन करना चाहते हैं, लेकिन मेरा पास पैसा नहीं है। लेकिन मोदी ऐसा स्कीम से निकाला है कि हम अगर बैंक में जाएंगे, हम जमीन दिखा देंगे, उस जमीन को दिखा के हम लोन ले सकते हैं, हम सुअर पालन कर सकते हैं, बकरी पालन कर सकता है, हम बिजनेस भी कर सकता है, लोन लेके हम लोग बिजनेस कर सकता है। तो कितने लोग हम लोग प्रधानमंत्री का ये सारा स्कीम, अगर हम लोग कल का सुअर अगर पालेंगे, सब्सिडी मिलता है 30%। अगर 1 करोड़ रुपए हम 50 लाख में पालेंगे तो हम लोग को 30% हमको सब्सिडी मिलेगा। अगर सचमुच हमारा फादर, जब भी मैं फादर के साथ बैठता हूँ, अशोक के साथ बैठता हूँ, मैं ये बात बोलता हूँ, जब आज हमने ये पूरा ऑल ओवर इंडिया का फादर, बिशप, नन, सिस्टर सबके साथ मैंने बैठा और ये बात हमने बताया, अगर सचमुच में हमारा आदमी को डेवलपमेंट करना चाहता है तो इस स्कीम को, सेंट्रल स्कीम को इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, तब हमारा लोग डेवलपमेंट होगा। एजुकेशन लोन नहीं है, एजुकेशन लोन के लिए क्या करना, आप जाइए, मोबाइल डिजिटल इंडिया आ गया। मोदी जी ने जब से डिजिटल इंडिया आया है, मोदी जी का डिजिटल इंडिया, आज डिजिटल है बोल के तो आज चंद्रयान पहुंचा। आप जाइए आज के दिन, यहाँ पर मान लिया हम गाय पालन करता है, या तो बकरी पालन करता है, या तो सुअर पालन करता है, आप यहाँ पर जाइए, व्हाट इज द पिग फार्म, हाउ टू अप्लाई द पिग फार्म, व्हाट इज द मोदी स्कीम्स ऑफ पिग फार्म, ये आप क्लिक कीजिए, गूगल में जाइए, यूट्यूब में जाइए, हाउ टू फिल फॉर्म द फॉर्म, कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, ये सारा चीज आपको बताया, किस बैंक में जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको आधार कार्ड चाहिए, उसके साथ जमीन का पेपर चाहिए, सारा चीज के लिए आप बकरी के लिए अलग जाइए, गोट के लिए जाइए, बिजनेस के लिए अलग अलग जाइए, आप सारा लोन आपको मिलेगा। लेकिन आपने बताइए यहाँ हम लोग कितने लोग हम लोग लोन निकाले हैं? वही ना आज ही जाके क्लिक करके देखिए, वही ना कल एनसी क्लिक करो, क्योंकि मैं इसीलिए बोलना चाह रहा हूं कि मोदी जी सबका साथ, सबका विकास है, सबका विश्वास है, सबका प्रयास। अगर हम लोग प्रयास नहीं करेंगे तो हमारा जनता का पास, हम लोग मोदी का सिपाही है। मोदी जी ने वहां से लॉन्च हर महीना कहीं ना कहीं किसी ना किसी योजना को लॉन्च करता है और उसको केवल कागज कलम और डिजिटल इंडिया में यहाँ पर है, लेकिन उसको हम लोग यूटिलाइज नहीं करते। प्रेसिडेंट ने भी पहले भी आपको दिया होगा, क्या दिया है, ये 3 पेज का 4 पेज का मिल जाता है और इसको घर घर में ये योजना के बारे में दीजिए। ये तो बस क्या लिखा रहता है, बस टॉपिक लिखा रहता है, लेकिन उस टॉपिक के अंदर में क्या क्या क्राइटेरिया है इसके बारे में आपको मालूम नहीं है। उसके लिए हम आपको मोबाइल में क्लिक कीजिए, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। इसीलिए इस बार का 2023 का जो हम लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इसको इसी को लेकर टारगेट करके चलना पड़ेगा कि हम लोग आने वाला दिन हमारा सरकार होता है तो हम ये सारा चीज इंप्लीमेंट हम लोग करके दिखाएंगे। घर घर में हम लोग जो गाय पालता है, गाय के व्यवस्था करेंगे। गाय खरीदने के लिए 40-50 हजार, दूध देने वाला गाय खरीदेगा तो 50,000 रुपए का, 50,000 उनका पास पैसा नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है। बकरी पालन करेगा, हम सुअर पालन लगे, लाखों रुपए लगेगा तो लाखों रुपए कहाँ से आएगा, हम बैंक में जाएंगे। तो ये आने वाला दिन हमारा सरकार आएगा तो
इतना केवल नहीं है, स्कूल हम बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, हेल्थ सेंटर बनाएंगे, ITI सेंटर बनाएंगे, ये हमारा गवर्नमेंट बनाएगा। ये जब से मोदी जी गवर्नमेंट आया 2014 के बाद में ये स्कीम सब लॉन्च हुई, अभी तक ग्रास रूट तक, आज आप लोग का स्टेट तक अभी तक नहीं पहुंचा है। क्यों नहीं पहुंचा है? इसको क्यों हम चुनेंगे? ये सेंट्रल स्कीम को लागू करने ही नहीं देता है, तो हम इसको वोट क्यों देंगे? केवल वोट का राजनीति करेगा, वो चेयर में बैठेगा, वो AC रूम में बैठेगा, उसके लिए गाड़ी घोड़ा होगा, उसका बेटा बेटी दिल्ली बम्बई दूसरा कंट्री पढ़ेगा, और हमारा गरीब मजदूर जिन्होंने मंत्री बनाया, जिन्होंने CM बनाया, उसका बेटा बेटी क्या खेत में हल चलाते रहेगा? कहता है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल के हम सरकार चला रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मिल के सरकार चला रहा है, आप नीचे ग्रास रूट में यही मैसेज छोड़ते हैं, लेकिन सेंट्रल का स्कीम आज तक ये जो जितना कुछ हमने बताया आज तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? मतलब मिसगाइड कर रहा है हमारा जनता को, सीधा साधा भोला भाला गरीब मजदूर जो हमारे पढ़े लिखे नहीं है, हमारा कोई मजदूर नीचे जो रिमोट एरिया में रहता है, विलेज में रहता है, वो पढ़े लिखे नहीं, तो मिसगाइड हो रहा है आज के दिन में। सारा पार्टी आता है, पहले कांग्रेस आया, उन्होंने भी लूटा, अभी NF है, क्या है MNF है, ये भी लूट रहा है। केवल गरीब जनता जो बना हुआ है, जिसका पास बिल्डिंग है, सारा चीज है, उसके लिए तो ठीक है। जो गरीब है तो कम से कम मोदी जी बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, वो गरीब मजदूर के लिए सोच रहे हैं। अब भाई कांग्रेस लोग